آئیے اب ہم آپ کو تفصیل سے تمام 10 مہلک بیماریوں کے بارے میں بتائیں اور یہ بھی آگاہ کریں کہ ان بیماریوں کے خلاف ویکسین کس طریقے سے بچوں اور ماؤں کو دی جائے گی۔ ویکسینیشن بچوں کو بیماریوں کے خلاف تحفظ دینے کا طریقہ ہے۔ ویکسینیشن بچے کی رانوں یا بازو میں ٹیکے لگا کر روٹا کی خوراک اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر دی جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہر بیماری کی علامات، اس سے بچاؤ کی ویکسین اور اس کو پلانے اور لگانے کے طریقہ کار کو علیحدہ تفصیل سے بیان کیا جائے۔ بچوں کی ٹی بی۔ ٹی بی ایک جرثومے مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس سے پھیلتی ہے۔ اس بیماری کی اہم علامت یہ ہے کہ بچے کا وزن اس کی عمر کے حساب سے نہیں بڑھتا، نیز بچوں میں گردن توڑ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے بچوں کو BCG ویکسین انجیکشن کے ذریعے لگائی جاتی ہے۔ BCG ویکسین ایک شیشی میں پاؤڈر کی شکل میں آتی ہے اور ٹیکہ لگانے سے قبل اس شیشی میں ایک ڈائلوینٹ کے ساتھ ملا کر تیار کی جاتی ہے۔ اس بات کا اچھی طرح خیال رکھا جائے کہ ڈائلوینٹ اور ویکسین ایک ہی کمپنی کے تیار کیے ہوئے ہوں۔ نیز یہ بھی تسلی کر لیں کہ ویکسین زائد المیعاد نہیں ہے۔ BCG کا ٹیکہ لگانے سے پہلے یہ بھی خیال رہے کہ ویکسین اور ڈائلوینٹ دونوں ILR میں ایک ہی درجہ حرارت پر رکھے ہوں۔ ویکسین تیار کرنے کے بعد 6 گھنٹے کے اندر لازمی استعمال کریں۔ بچ جانے والی ویکسین کو ضائع کر دیں یا جلا دیں۔ یاد رہے کہ بنائی گئی ویکسین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر ہرگز استعمال نہ کریں۔ BCG ویکسین کا انجیکشن لگانے کا طریقہ۔ BCG کا ٹیکہ لگانے کے لیے 0.05 ml کی مخصوص AD سرنج لیں۔ پیمانے کا رخ اوپر کی طرف رکھیں تاکہ دوا کی صحیح مقدار بھری جائے۔ ویکسین سرنج میں بھرنے کے بعد فوراً بچے کو لگائیں۔ ٹیکہ دائیں بازو کے اوپر کے حصے میں جلد کے اندر یعنی انٹراڈرمل لگائیں۔ خیال رہے کہ اگر ٹیکہ صحیح طریقے سے لگایا جائے تو جلد میں ہموار سطح والا ورم جیسا ابھار بن جائے گا، لہٰذا جب بچہ دوبارہ آئے تو ٹیکے کے نشان کا جائزہ لیں۔ واضح رہے کہ حفاظتی ٹیکہ جات کے پروگرام میں BCG کا ٹیکہ لگانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹیکہ جلد کے اندر لگایا جاتا ہے، اس لیے BCG کا ٹیکہ لگانے کی ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کو پولیو کی بیماری اور اس کی ویکسین IPV اور OPV کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے۔ پولیو کا مرض 3 قسم کے وائرس P1، P2، P3 سے پھیلتا ہے جو بچے کے جسم میں منہ کے راستے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے کے اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے اور بچے کو فالج ہو جاتا ہے۔ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین 2 طرح کی ہے، ایک OPV جو P1 اور P3 وائرس کے خلاف قطروں کی شکل میں پلائی جاتی ہے اور دوسری IPV جس کا P2 وائرس کے خلاف ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین مختلف طرح کی پیکنگ میں دستیاب ہوتی ہے۔ دوسری ویکسینوں کے مقابلے میں پولیو ویکسین دھوپ اور گرمی سے جلد متاثر ہو جاتی ہے۔ OPV پولیو ویکسین کی خوراک۔ پیدائشی خوراک، پیدائش کے فوراً بعد۔ پہلی خوراک 6 ہفتے کی عمر میں، دوسری خوراک 10 ہفتے کی عمر میں، تیسری خوراک 14 ہفتے کی عمر میں۔ ہر خوراک میں 2 قطرے پلانے چاہیے۔ ویکسین تیار کرنے والی کمپنی کی ہدایت بھی پڑھنی ضروری ہے۔ ویکسین پلانے کے لیے وائل کی سیل اتاریں، ڈراپر لگائیں اور 45 ڈگری کے زاویے سے 2 قطرے بچے کو چھوئے بغیر اس کے منہ میں ٹپکا دیں۔ یاد رہے کہ بچے کو پیدائش کے بعد پولیو کی خوراک ملی ہو یا نہ ملی ہو، پولیو کی پہلی خوراک 6 ہفتے کی عمر میں باقی ویکسینز کے ساتھ دی جائے گی۔ IPV ویکسین کے ٹیکے کی تفصیل اور خوراک کچھ یوں ہے۔ یہ پولیو وائرس P2 کے خلاف مفید ہے اور دوسری ویکسینوں کے مقابلے میں یہ گرمی، دھوپ اور جمنے کی وجہ سے جلد خراب ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان میں 10 خوراکوں کی پیکنگ میں آتی ہے۔ یہ ویکسین بچے کو 14 ہفتے کی عمر میں باقی ویکسینوں کے ساتھ صرف ایک بار دی جاتی ہے۔ IPV ان ایکٹیویٹڈ پولیو ویکسین ٹیکہ لگانے کا طریقہ۔ 0.5 ml کی AD سرنج لیں، ویکسین کی شیشی سے سرنج میں ویکسین بھریں۔ ویکسین سرنج میں بھرنے کے بعد فوراً بچے کو لگائیں۔ یہ ایک عضلاتی انٹرامسکولر ٹیکہ ہے۔ اسے بائیں ران کے بیچ میں اگلے حصے میں باہر کی طرف PCV 10 سے 1 انچ اوپر یا نیچے 90 ڈگری کے زاویے پر لگائیں۔ یاد رہے کہ IPV ٹیکہ بچے کے بازو اور کولہے میں نہیں لگایا جاتا۔ اب آپ کو 5 مہلک اور خطرناک بیماریوں کالا یرقان یعنی ہیپیٹائٹس B، خناق، کالی کھانسی، تشنج یا جھٹکے کی بیماری،
गर्दन तोड़ बुखार और नमूनिया की अलामात और इन सब से बचाव के लिए लगाई जाने वाली एक वैक्सीन पेंटावेलेंट के बारे में बताया जाएगा। पेंटावेलेंट वैक्सीन का तरीकाकार बताने से पहले इन बीमारियों के बारे में मुख्तसरन जानना जरूरी है। काला यरकान का मर्ज हेपेटाइटिस बी नामी वायरस से फैलता है, जो मुतासरा मरीज के खून, मादा तौलीद और जिस्म की दूसरी रतूबतों में होता है। खन्नाक की बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है और ज्यादातर सर्दियों में फैलती है। इसमें गले में शदीद दर्द होता है, सफेद रंग की झिल्ली आ जाती है और गर्दन सूज जाती है। काली खांसी भी एक ऐसा मुताद्दी मर्ज है जो ज्यादातर छोटे बच्चों को होता है। थका देने वाली इस खांसी में एक खास किस्म की आवाज वूप आती है, इसीलिए इसे काली खांसी या वूपिंग कॉफ कहते हैं। तशन्नुज या झटके की बीमारी फुजले या जानवरों के गोबर से फैलती है। अगर ज़च्चगी के दौरान सफाई का ख्याल न रखा जाए तो इस बीमारी के जरासीम तशन्नुज की वजह बन जाते हैं, जबकि नौज़ायदा बच्चों में तशन्नुज नाड़ों को गंदे औजार से काटने या इस जगह पर घी, मट्टी या गोबर, राख और सुरमा वगैरह लगाने से होता है। गर्दन तोड़ बुखार और नमूनिया भी एक ऐसी बीमारी है जो मुतासिरा मरीज की सांस, खांसी और छींकने से दूसरे बच्चों को लग जाती है। इन तमाम बीमारियों से बचाव के लिए लगाई जाने वाली एक वैक्सीन पेंटावेलेंट 5 वैक्सीनों का मजमुआ है। इसे जमने से महफूज रखने के लिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, क्योंकि ये जमने से खराब हो जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन की खुराक: पहली खुराक 6 हफ्ते की उम्र में, दूसरी खुराक 10 हफ्ते की उम्र में, तीसरी खुराक 14 हफ्ते की उम्र में। पेंटावेलेंट टीका लगाने का तरीका: 0.5 ml की एडी सिरिंज लें, वैक्सीन की शीशी से सिरिंज में वैक्सीन भरें। ये एक उजलाती इंट्रामस्कुलर टीका है। इसे दाएं रान के अगले बाहर वाले हिस्से में 90 डिग्री के जाविये से लगाएं। रान में टीका गहराई में लगाएं। याद रहे कि ये टीका भी बच्चे के बाजू और कूल्हे में नहीं लगाया जाता। नमूनिया एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। इसके जरासीम मुतासरा मरीज की सांस, खांसी और छींकने से दूसरे बच्चों को नमूनिया और गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला कर देते हैं। EPI प्रोग्राम में इस मर्ज के लिए PCV10 वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। इसे जमने से महफूज रखने के लिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, क्योंकि ये जमने से खराब हो जाती है। खुली हुई वायल को 6 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें। इससे ज्यादा वक्त गुजरने पर वैक्सीन को जाया कर दें। न्यूमोकोकल वैक्सीन की खुराक: पहली खुराक 6 हफ्ते की उम्र में, दूसरी खुराक 10 हफ्ते की उम्र में, तीसरी खुराक 14 हफ्ते की उम्र में। न्यूमोकोकल का टीका लगाने का तरीका: 0.5 ml की सिरिंज लें और इसमें वैक्सीन की शीशी से वैक्सीन भरें। ये एक उजलाती इंट्रामस्कुलर टीका है। इसे बाएं रान के ऊपर बाहर वाले हिस्से में 90 डिग्री के जाविये से लगाएं। रान में टीका गहराई में लगाएं। याद रहे कि ये टीका भी बच्चे के बाजू और कूल्हे में नहीं लगाया जाता। खसरा भी एक से दूसरे बच्चे को लगने वाली बीमारी है, जो मुतासिरा मरीज की सांस और खांसी की वजह से दूसरे बच्चों को भी इसमें मुब्तला कर देती है। खसरा के जरासीम गले और नाक की रतूबतों से बराह रास्त भी दूसरे बच्चों को मुतासिर कर सकते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए बच्चों को खसरा की वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। खसरा वैक्सीन एक शीशी में पाउडर की शक्ल में आती है और टीका लगाने से कबल इस शीशी में एक डाइल्यूएंट के साथ मिलाकर तैयार की जाती है। इस बात का अच्छी तरह ख्याल रखा जाए कि डाइल्यूएंट और वैक्सीन एक ही कंपनी के तैयार किए हुए हों। नेज ये भी तसल्ली कर लें कि वैक्सीन जायदुल मयाद नहीं है। खसरे का टीका लगाने से पहले ये भी ख्याल रहे कि वैक्सीन और डाइल्यूएंट दोनों ILR में एक ही दर्जा हरारत पर रखे हों। खसरा का टीका लगाने का तरीका: खसरा का टीका लगाने के लिए 0.5 ml की एडी सिरिंज लें। वैक्सीन सिरिंज में भरने के बाद फौरन बच्चे को लगाएं। टीका बाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में जिल्द के नीचे लगा दें। सिरिंज को 45 डिग्री पर रखकर टीका लगाएं। याद रहे कि EPI प्रोग्राम में सिर्फ BCG और खसरा का टीका बच्चे के बाजू में लगता है। वैक्सीन तैयार करने के बाद 6 घंटे के अंदर लाजमी इस्तेमाल कर लें। बच जाने वाली वैक्सीन को जाया कर दें या जला दें। याद रहे कि बनाई गई वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर हरगिज इस्तेमाल ना करें।
बच्चों में दस्त या इसहाल के 40% केसेस रोटा वायरस की वजह से होते हैं। इसमें बच्चे को बुखार, उल्टी या कै, पतले पानी जैसे पखाने और पेट में दर्द होता है। इसकी अहम वजह बच्चों और बड़ों दोनों का रफ़ा हाजत के बाद साबुन से हाथ न धोना है। हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम के तहत पिलाई जाने वाली रोटा वैक्सीन का नाम रोटारिक्स है, जो जनवरी 2017 से हिफाजती टीकों के शेड्यूल में शामिल की गई है। रोटा वैक्सीन की पहली खुराक 6 हफ्ते और इसके 4 हफ्ते बाद यानी जब बच्चा 10 हफ्ते का हो जाए तो इसकी दूसरी खुराक पिलाई जाती है। हर खुराक में 1.5 ml की सारी मिकदार पिलाई जाती है। रोटा वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखना चाहिए, क्योंकि जम जाने या 8 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत पर गर्म हो जाने से ये अपनी अफादियत खो देती है। रोटा वैक्सीन की खुराक पिलाने का तरीका। वैक्सीन पिलाने से पहले वैक्सीनेटर के हाथ साफ होने चाहिए। वैक्सीन को बच्चे के मुंह में डालकर इस तरह दबाया जाए कि वो बच्चे के निचले गाल के अंदरूनी हिस्से में गिरे। ट्यूब को आहिस्ता आहिस्ता दबाएं ताकि बच्चा इत्मीनान से सारी वैक्सीन पी ले। वैक्सीन पिलाने के बाद बच्चे की थोड़ी को थपथपाएं। अगर बच्चा वैक्सीन उगल दे तो दोबारा पिलाने की जरूरत नहीं। अब आपको खवातीन को लगाए जाने वाले तशन्नुज के टीके के बारे में बताया जाएगा, जो हामला खवातीन को हमल के इब्तिदाई दिनों में जल्द से जल्द या 15 से 49 साल की खातून को लगाया जाता है। टीटी वैक्सीन का टीका हमल के दौरान या 15 साल की उम्र में जल्द अज जल्द। दूसरा टीका पहले टीके के 1 महीने बाद। तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 महीने बाद। चौथा टीका तीसरे टीके के 1 साल बाद। पांचवा टीका चौथे टीके के 1 साल बाद। टीटी वैक्सीन के लिए 0.5 ml की एडी सिरिंज लें। ये टीका बाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में 90 डिग्री के जाविये से पट्टे पर लगाएं। ख्याल रहे कि टीका पट्टे में गहराई में लगाया जाए। याद रहे कि टीटी का पहला टीका और दूसरा टीका हमल के दौरान दिया जाता है, जबकि बाकी टीका जात हमल का लिहाज किए बगैर शेड्यूल के मुताबिक दिए जा सकते हैं। तशन्नुज से तहफ़्फ़ुज़ दूसरे टीके के 15 दिन बाद शुरू होता है, इसलिए टीटी का दूसरा टीका पैदाइश से कम से कम 15 दिन पहले लगाया जाए ताकि माँ और बच्चा दोनों तशन्नुज से महफूज रहें। वाज़े रहे कि माँ को लगने वाले तशन्नुज के बचाव के इस टीके से आने वाला बच्चा भी तशन्नुज से महफूज हो जाता है और माँ को भी उम्र भर का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर हिफाजती टीकों का मुकम्मल शेड्यूल याद दहानी के लिए तरतीब से दिखाया जाएगा। वैक्सीन का नाम BCG, खुराक 0.05 ml, तरीका जिल्द के अंदर, टीकों की तादाद 1 दफा, कब पैदाइश के फौरन बाद, टीका लगाने की जगह दाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में लगाएं। वैक्सीन का नाम पोलियो, खुराक 2 कतरे, तरीका पिलाएं, टीकों की तादाद कतरे 4 दफा, कब पैदाइश के फौरन बाद 6, 10, 14 हफ्ते की उम्र में, मुंह के जरिए पिलाएं। वैक्सीन का नाम पेंटावेलेंट, DPT, हेपेटाइटिस B और हिब, खुराक 0.5 ml, तरीका पट्टे में, टीकों की तादाद 3 दफा, कब 6, 10, 14 हफ्ते की उम्र में, टीका लगाने की जगह दाएं रान के पट्टे में ऊपर और बाहर के हिस्से में लगाएं। वैक्सीन का नाम न्यूमोकोकल PCV10, खुराक 0.5 ml, तरीका पट्टे में, टीकों की तादाद 3 दफा, कब 6, 10, 14 हफ्ते की उम्र में, टीका लगाने की जगह बाएं रान के पट्टे में ऊपर और बाहर के हिस्से में लगाएं। वैक्सीन का नाम IPV, खुराक 0.5 ml, तरीका पट्टे में, टीकों की तादाद 1 दफा, कब 14 हफ्ते की उम्र में, टीका लगाने की जगह बाएं रान के पट्टे में PCV10 से 1 इंच के फासले पर लगाएं। वैक्सीन का नाम खसरा, खुराक 0.5 ml, तरीका जिल्द और पट्टे के बीच, टीकों की तादाद 2 दफा, कब 9 माह की उम्र में 15 माह की उम्र में, टीका लगाने की जगह बाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में लगाएं। वैक्सीन का नाम रोटावैक्सीन, खुराक 1.5 ml, तरीका पिलाएं, टीकों की तादाद 2 दफा, कब 6 और 10 हफ्ते की उम्र में, मुंह के जरिए पिलाएं। वैक्सीन का नाम TT वैक्सीन, खुराक 0.5 ml, तरीका पट्टे में, टीकों की तादाद 5 दफा,
कब हमल के दौरान 2 खुराकें। बकिया टीके शेड्यूल के मुताबिक। टीका लगाने की जगह बाएं बाजू के पट्टे में। वैक्सीन का नाम डीपीटी बूस्टर। खुराक 0.5 ml। तरीका पट्टे में। टीकों की तादाद 1 दफा। कब 4 साल की उम्र में। टीका लगाने की जगह बाजू के ऊपरी हिस्से में। हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम में 2 तरह की सिरिंजें इस्तेमाल की जाती हैं, जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जाती हैं। स्टैंडर्ड डिस्पोजेबल सिरिंज। ये सिरिंज पाउडर और डाइल्यूएंट को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस सिरिंज को एक दफा इस्तेमाल के फौरन बाद सेफ्टी बॉक्स में डाला जाए। इस्तेमाल के बाद खुद ब खुद बेकार होने वाली यानी एडी सिरिंज। ये भी एक डिस्पोजेबल सिरिंज है। इसमें एक बार प्लंजर को आगे धकेलने के बाद वापस नहीं खींचा जा सकता। इस सिरिंज को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की शीशी में डालने के बाद खींचना चाहिए। बच्चे को टीका लगाने के फौरन बाद इसे सेफ्टी बॉक्स में डाल दें। अब आप सिरिंज और सुई के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जानेंगे। प्लंजर टॉप, बैरल, प्लंजर सील, एडाप्टर, स्केल। सुई के मुख्तलिफ हिस्से, बीवल, शाफ्ट, एडाप्टर। सिरिंज और सुई के इस्तेमाल का तरीका। सिरिंज के जिस हिस्से को हाथ लग जाए वो आलूदा हो जाता है। सिरिंज के इन हिस्सों को छुआ जा सकता है। प्लंजर टॉप, बैरल और नीडल एडाप्टर। सिरिंज के इन हिस्सों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। नीडल शाफ्ट, बेवल। सिरिंज को खोलने से टीका लगाने तक की एहतियात। आलूदा सुइयों के चुभने से कई मोहलिक बीमारियां फैल सकती हैं, लिहाजा सुई से वैक्सीन देते वक्त और देने के बाद एहतियात करें। पैक शुदा सिरिंज को बस इतना खोलें कि सिरिंज पकड़ी जा सके। सुई की कैप उतारकर सेफ्टी बॉक्स में डाल दें। सिरिंज में वैक्सीन भरें और फौरी तौर पर टीका लगा दें। इस्तेमाल के फौरन बाद सिरिंज को सेफ्टी बॉक्स में डाल दें। जब सेफ्टी बॉक्स 3/4 हिस्से तक भर जाए तो इसको जलाकर दफन कर दें। सुई पर इसकी कैप हरगिज न चढ़ाएं, क्योंकि सुई चुभने से जख्म का अंदेशा होता है। अगर मरीज का खून या इस्तेमाल शुदा सुई जिस्म पर लग जाए तो हाथ और जिस्म को फौरन साबुन से धो लेना चाहिए। हमेशा याद रखें, किसी भी वैक्सीन का टीका कूल्हे में ना लगाएं। सुई को इंजेक्शन लगाने के बाद हरगिज हाथ से ना छुएं। हर इंजेक्शन के लिए हर बार नई सिरिंज इस्तेमाल करें। सिरिंज में वैक्सीन भरकर दूर जाकर टीका लगाना दुरुस्त नहीं। सिरिंज में वैक्सीन उसी वक्त भरें जब मां और बच्चा दोनों आपके सामने मौजूद हों। ट्रेनिंग वीडियो के इस हिस्से में आपको 10 मोहलिक बीमारियों की तफसीलात से आगाह किया गया और ये भी बताया गया कि उन मोहलिक बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीन या हिफाजती टीकाजात किस तरीके से बच्चों और माओं को दिए जाते हैं। उम्मीद है कि ये तमाम मालूमात आपके लिए फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में आपके काम में बहुत मददगार साबित हों।